میں کوئی زیادہ مقرر نہیں، میں کوئی زیادہ واعظ کرنے والا نہیں، میں جو ہے ایک تاریخ میرا مضمون ہے، میں کسی چیز کی تاریخ بیان کر سکتا ہوں، واعظ اور نصیحت نہیں کر سکتا۔ مولانا عبدالغفور صاحب نے جو نصیحت کی ہے، علمی باتیں بتائیں، وہ اب میرے ہاتھ سے وہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ مولانا عبدالباری صاحب نے جو آپ کو بہترین نصیحت کی ہے، وہ نصیحت ہے کہ بہت عمدہ ہے، ماشاءاللہ اس کو آپ لوگ اس پر عمل کریں۔ اور مولانا عبدالوہاب صاحب جامع مدرسے کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ تو اور مولانا عبدالغفور جامعی کی پوری تقریر اس آیت کا نچوڑ تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کا نمونہ تھی وہ تقریر۔ وہ تمنا تقریر تھی، بہت علمی تقریر تھی۔ تو یہ جامعہ محمدیہ عربیہ کے جو ہے قابل فخر فارغین میں سے ہیں۔ تو اب آج میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ جو ہے ایک علماء جو ہے کیسے ہوتے ہیں اور شاگرد کیسے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق کیسے ہوتا ہے، دعوت اور تبلیغ کیسے ہوتی ہے، اور جامعہ کس حالت میں اور اس کو کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے میں بتاؤں کہ اس ہندوستان میں غوریوں کی حکومت قائم ہوئی۔ محمد بن قاسم 90 ہجری میں محمد بن قاسم نے سندھ میں حکومت اسلامی حکومت قائم کی، وہاں مسلمان ہیں۔ اس کے بعد محمد غوری نے 300 ہجری میں دہلی پر قبضہ کیا، غوریوں نے کچھ دنوں تک حکومت کی۔ اس کے بعد خلجیوں نے ایک چند دنوں تک حکومت کی۔ اس کے بعد تغلق خاندان کے لوگوں نے جو ہے کچھ دنوں تک حکومت کی۔ اس کے بعد جب اکبر کا زمانہ آیا تو اکبر نے ایک دین الہی اپنی طرف سے ایک دین کو بنا دیا لوگوں کے سامنے، اپنے دین الہی، اور اس کو قائم کرنا چاہے۔ اکبر بادشاہ جو ہے اس کے پاس بہترین علماء تھے، لیکن کتاب و سنت سے کا علم ان کو نہیں تھا۔ مثلاً اکبر بادشاہ کے دربار میں ابوالفیض فیضی ایک عالم تھا، عربی علم کا سب سے بڑا، دنیا میں سب سے بڑا عالم بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے کتب خانہ جامعہ محمدیہ میں بے نقط تفسیر دیکھی ہوگی۔ بے نقط تفسیر قرآن کے الفاظ میں نقطے والے حروف ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر میں ایک نقطہ نہیں ہے، بے نقط الفاظ 12 ہیں، وہ 12 الفاظ نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ تو ابوالفیض فیضی یہ اکبر کے دربار کا ایک رتن تھا، اس کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا۔ یہ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود اس کو قرآن اچھا آتا تھا، حدیث معلوم نہیں تھی اور حدیث کا علم نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ایک مجدد الفسانی، ایک بہت بڑے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی دعوت کو لوگوں نے دوسرے 1000 سال، 1000 کے بعد 1002 یا 3 میں وہ پیدا ہوئے، اور 1025 میں انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، تو ان کو مجدد الفسانی بولتے ہیں۔ تو انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو اکبر کو غصہ آیا۔ اکبر نے جو ہے ان کو گوالیار کے جیل خانے میں بند کر دیا، اور جب مولانا مجدد الفسانی وہ جیل میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارے مسلمان جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو خیر اب یہ اکبر کے بعد جہانگیر بادشاہ آیا، اس بادشاہ کے سامنے لوگوں نے کچھ دین کی باتیں پیش کی، اور اس کے ساتھ کہا کہ ایک بڑے عالم کو بے وجہ جیل میں رکھا گیا ہے، مجدد الفسانی کو، آپ ذرا ان کو آپ ان کو رہا کر دیجیے۔ تو اس نے بادشاہ نے رہائی کا حکم دیا۔ جب اس جیل کا دروازہ کھولا گیا تو جیل میں جو 100 مجرم تھے وہ سب کے سب مومن، متقی، پرہیزگار، نمازی بن چکے تھے۔ مولانا مجدد الفسانی
जब वो जेल में पहुंचे तो देखा कि ये सब बेदीन है, बेनमाजी हैं और जो है मुजरिम हैं। उन सब को बिठाकर उन्होंने ऐसी तबलीग किया कि वो सब के सब मुद्दत पर परेशान हो गए। एक आलिम जो है अगर खिदमत करना चाहे तो वो दिल से अगर इखलास से खिदमत करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके इखलास में अपना जो असर पैदा करेगा। वैसे थे उलमा हो ज़माने के लोग। आइए मैं आपको बताऊं, मैं तारीख का इल्म है, मुझे बुलाया गया तो मैं समझा कि मुझे तकरीर का मौका दिया जाएगा, मैं 1 घंटा तारीख पर बोलूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद सदारती जो है कुर्सी पर बिठाया गया और सिर्फ 25 मिनट वक्त मुझे दिया गया। नहीं क्योंकि 1:15 बजे जमात है। देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए नमाज मुअख्खर करेंगे। देखिए ये लोग ऐसे थे, नमाज मुअख्खर करेंगे। ये मुजीद अल फसानी, उन्होंने अकबर के गवर्नरों को खुतूत लिखकर किताब और सुन्नत की तालीम को आम करने और कबूल करने का उन्होंने दावत दी। तो एक गवर्नर अब्दुल रहीम जाने जाना उन्होंने कबूल किया। और उसके बाद शाहजहां बादशाह आया। वो बादशाह खजाने भरे हुए थे, बहुत फरमा बरदार थी। उस बादशाह ने पूरी दौलत तामीरात में लगा दी। लाल किला बनाया दिल्ली का, आगरे का लाल किला बनाया और मस्जिद जामे मस्जिद, दिल्ली की जामे मस्जिद बना डाली। और ताजमहल पर उस जमाने में 63,000 करोड़ रुपया उसने खर्च किया। हुकूमत का पैसा, वो अवाम का पैसा वो खर्च किया। और जब वो जामे मस्जिद की बुनियाद रखने का मौका आया तो बादशाह ने मुल्क के तमाम उलमा को बुलाया और सब लोग जमा हुए। तो संग बुनियाद रखने का वक्त आया तो बादशाह ने कहा, शाहजहां बादशाह ने, कि देखो मेरी इस मस्जिद के लिए मैंने एक शर्त रखी है कि बुनियाद रखने वाला ऐसा शख्स होना चाहिए जिसकी बुलूगत के बाद से अब तक एक तहज्जुद की नमाज ना छूटी। तो इतना सुन्नत था, सारे उलमा पीछे हट गए। शाहजहां ने कहा कि मेरा एक राज था जिसको मैं किसी को नहीं बताया, आज उसको जाहिर करता हूँ। चुनांचे आगे बढ़ा, वो खुद संग बुनियाद रखा। तो बादशाह से जिसकी उम्र में कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, ऐसे नहीं थे। लेकिन सिर्फ ये इनकी नेकी, इनकी अच्छाई, वो खिलौन के हद तक थी, खिलौन के बाहर दीन नहीं था। खिलौन के बाहर यहाँ तक कि औरंगजेब बादशाह आया तो लोगों ने औरंगजेब बादशाह से कहा कि हनफी मजहब ही सबसे बेहतर है। तो उसने एक कमेटी बनाई और कहा कि फतवा हनफिया को तहरीर करो। तो तमाम लोगों ने मिलकर फतवा आलमगीरिया बोल के 12 जिल्दों में या 14 जिल्दों में पूरे फिक़ह हनफी को लिख दिया। उसमें एक मेंबर थे मौलाना अब्दुल रहीम साहब, जो वो कमेटी के मेंबर थे। मौलाना अब्दुल रहीम साहब वो जमाने में एक मदरसा चलाते थे, मदरसे रहीमिया। उसमें उनके कुछ शागिर्द पढ़ते थे। उसी में जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा मुंबा, एक बहुत बड़े आदमी यानी मौलाना अब्दुल रहीम साहब के फर्जंद शाह वलीउल्लाह पढ़ते थे मदरसे में। और उन्होंने शाह वलीउल्लाह ने अपने बाप से पूरा दरसे हदीस लिया, दरसे निज़ामी पूरा किया। 17 साल के अंदर आलिम बन गए। और फिर उसके बाद जब उनके वालिद ने देखा कि बच्चा जवान हुआ है तो अपने मदरसे में रहीमिया में उनको बिठाया और खुद वहाँ से हट गए और उनका इंतकाल हो गया। शाह वलीउल्लाह जो है मदरसे रहीमिया में पढ़ाते थे। और शाह वलीउल्लाह इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि उनकी जबान से निकलने वाला लफ्ज शागिर्दों के दिलों में बैठ जाता था। एक मर्तबा शाह वलीउल्लाह साहब दर्स दे रहे थे, दर्स हो रहा था। शाह वलीउल्लाह साहब ने कहा, अरे कहीं खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, कौन इतर लगा है? तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो एक उसमें से शागिर्द रोने लगा, खूब रोता है। तो बोले क्यों रोता है?
कहा कि नहीं, मैं एक घर में, एक साहूकार के घर में जो है प्राइवेट तालीम देने के लिए जाता था। कल मैं जब गया तो वहाँ की एक नौजवान लड़की मुझे बुराई पर जो है उकसा रही थी और दरवाजा बंद कर चुकी थी और मेरे लिए जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने जो है इस्तिंजा का जरूरत का बताकर बैतुल खला में जाके पैखाना जो है नजासत अपने कपड़ों पर लगा के बाहर आया तो मुझे छोड़ दी और मैं आ गया। और मैं जो है जमुना नदी में जाके वो कपड़े मामूली सलाह धोकर अभी आ रहा हूँ, वो मेरे कपड़ों की बदबू है, खुशबू नहीं है बोल के वो शागिर्द रो रहा है। शाहवलीउल्लाह ने कहा कि बेटा ये तेरे ईमान की खुशबू है, ये बदबू नहीं है, ये तेरे ईमान की खुशबू है। तूने जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना पेश किया है। इस किस्म के वो उस्ताद थे और वैसे वो जमाने के शागिर्द थे और वहाँ से पढ़े हुए लोग। शाह वलीउल्लाह ने अपने फर्जंद शाह अब्दुल अजीज को आलिम बनाया, पढ़ाया। और शाह वलीउल्लाह जब मदीना मुनव्वरा गए वहाँ उन्होंने अबू ताहिर मदनी से जो है हदीस का दर्स लिया और अबू ताहिर मदनी अपने वालिद से पूरे हदीसें पढ़ चुके। तो बाप से एक बेटा इल्म हासिल करता है। आज हमारे बच्चों को हम एक लफ्ज नहीं पढ़ाते, अगर पढ़ाते हैं तो बच्चा लाड़ प्यार करके निकल जाते हैं। और यहाँ देखिए कि शाह वलीउल्लाह जो है बाप से इल्म हासिल कर रहे हैं और अबू ताहिर मदनी जो है उनके बाप से इल्म हासिल कर रहे हैं और अब शाह अब्दुल अजीज अपने बाप से इल्म हासिल करते हैं। तो ये बाप जो है घर का बड़ा होता है, वो बच्चों को पढ़ाने की फिक्र करना चाहिए, कहीं से पढ़ाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे बेइल्म हो जाएंगे। तो हमारे मदरसे के पुराने शागिर्द जानते होंगे कि हमारे पास एक नौ मुस्लिम मोहम्मद खालिद रेड्डी के एक बेटे महबूब बादशाह थे। जानते हैं महबूब बादशाह? महबूब बादशाह, वो महबूब रहमान, वो खतर में रहते हैं। उन्होंने खतर में शादी की तो उनको 4 लड़कियां, एक के पीछे एक 4 लड़कियां करबील में शादी की। और वो भी 9 मुस्लिमा थी और वो 9 मुस्लिम और ये 9 मुस्लिम दोनों की शादी हुई, 4 बेटियां हुई है। कभी उन्होंने अल्लाह की शिकायत नहीं की। अभी 1 महीना पहले रायपुर में महबूब बादशाह साहब अपनी बेटी के साथ जा रहे थे, मुलाकात हुई। मैंने कहा कि अमर साहब आपके बच्चे, आपकी बच्चियां कैसे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं, कितना पढ़े हैं, क्या वो 10 क्लास में है, क्या PUC में है, क्या BA में। तो मौलाना ने कहा कि मौलाना मैं अपने बच्चों को किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया, ये मेरे 3 बच्चियां हाफिज बन चुके हैं, माशाअल्लाह, कुरान मजीद के हाफिज बन चुके हैं। ये बच्ची जो मेरे साथ चल रही है 8 साल की बच्ची 15 पारों की हाफिज आ गई। मैं बोला कब पढ़ाते हैं आप? बोले कि मेरी ड्यूटी असर तक होती है, असर के बाद मैं बच्चों को लेकर बैठता हूँ और उनको हाफिज कुरान बनाता हूँ। 4 बच्चों को उन्होंने हाफिज कुरान बनाया। लेकिन एक बाप बच्चों को कितनी फिक्र करता है और कितना मेहनत उठाता है, तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे बहुत बड़ा इसका तो खैर मेरा मजमून लंबा होता जा रहा है। मैं आप लोगों को इस जमिया की तरफ लेकर आता हूँ कि मौलाना शाह वलीउल्लाह ने जो मदरसा कायम किया उसका माना मदरसे रहीमिया, और एक शाह अब्दुल अजीज ने एक मदरसा कायम किया, वहाँ से भी लोग पढ़कर निकले। शाह वलीउल्लाह समझो एक बहुत बड़ा डैम है और उनसे 2 नहरें निकले। शाह वलीउल्लाह से 2 नहरें निकली, एक मीठे पानी की नहर, एक खारे पानी की नहर। तो मीठे पानी की नहर में बोलूंगा तो उसके लिए वक्त चाहिए बहुत देर। खारे पानी की नहर के बारे में भी बोलूंगा तो उसके लिए भी वक्त चाहिए। खैर मुख्तसर मैं कहता हूँ कि शाह अब्दुल अजीज के शागिर्दों में से 2 किस्म के शागिर्द हुए, एक अहले हदीस शागिर्द हुए, एक हनफी शागिर्द हुए। मौलाना शाह मोहम्मद इसहाक साहब जो उनके नवासे थे वो मुहद्दिस हुए और उनके शागिर्द मौलाना सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी हुए। उनके शागिर्द
मौलाना अब्दुल रहमान मुबारक पूरी हुई है, उनके शागिर्द मौलाना अब्दुल सलाम बस्तवी हुई है, उनके शागिर्द मौलाना अब्दुल बासित साहब हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह ये मीठा पानी की नहर, और इस नहर से कितनी शाखें निकली हैं, अगर मैं उसको बयान करूंगा तो एक एक शाख पर एक एक घंटा लग जाएगा। उतना वक्त हमारे पास नहीं है। तो दूसरी शाख शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी से एक मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी महाजिर मक्की उनके शागिर्द थे, उनके शागिर्द मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी वो उनके शागिर्द थे। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने मदरसे देवबंद कायम किया। मदरसे देवबंद बड़े इखलास के साथ उन्होंने कायम किया। हनफी मदरसा था, लेकिन जितना इखलास उनमें था बहुत कम लोगों में इखलास पाया जाता है। उस इखलास की बरकत से ये मदरसा बहुत तरक्की किया, और जो इस मदरसे से बड़े बड़े उलमा निकले। ये एक अनार का दरख्त है वहाँ, और उस अनार के दरख्त के नीचे एक महमूद नाम का एक टीचर पढ़ाता था और एक महमूद नाम का शागिर्द पढ़ता था, और दोनों वो महमूद नाम का शागिर्द पढ़ते पढ़ते महमूदुल हसन शेखुल हदीस बन गया, और उनके शागिर्द ये मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब शेखुल हदीस बहुत बड़े शागिर्द, और उनके शागिर्द ये मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी, और इस तरह ये नहर इधर से चली। उन्होंने देवबंद का मदरसा कोई मामूली मदरसा नहीं, इस मदरसे के लोगों ने तमाम दरसियात का तर्जुमा कर दिया। कोई भी दरसी किताब उठाओ कि देवबंदियों ने तर्जुमा कर दिया। ये उनका बड़ा एहसान है दरसे निज़ामी पढ़ाने वालों के लिए। जिस किताब को भी देख लेंगे आप दरसे निज़ामी की, फिक़ह की हो, हदीस की हो और कुरान की हो, फौरन उन्होंने तर्जुमा कर दिया। इतना बड़ा काम वहाँ किया। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि मीठे पानी की नहर में मौलाना जो है सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े शेखुल हदीस, उनके शागिर्दान जितने काबिल निकले, किसी उस्ताद के से शागिर्द काबिल शागिर्द नहीं निकले। मैं बताऊं आपको कि मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन साहब मुहद्दिस दहलवी के 2000 शागिर्द निकले जो जय्यद उलमा थे। मौलाना सैयद इस्माइल साहब फरमाते थे कि देखो मदरसों की 3 किस्में हैं। एक मदरसा जद्दुल मदारिस, इसको मौलाना शाह वलीउल्लाह का मदरसा, तमाम मदरसों का दादा, और उसके बाद दूसरा मदरसा अबुल मदारिस, मदरसों का बाप, वो शाह अब्दुल अजीज का मदरसा जहाँ से 2 नहरें निकले, और तीसरा मदरसा उम्मुल मदारिस, मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी का मदरसा, जिससे बड़े बड़े उलमा शेखुल हदीस पैदा हुए। उनके शागिर्दों में से ऐसे बेहतरीन शागिर्द थे। मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने तिरमिज़ी की शरह तोहफ़तुल आवाज़ी लिखी, मौलाना जो है शमसुल हक लयालवी ने औनुल माबूदावत की शरह लिखी, और दूसरे और एक मौलाना ने और एक हदीस की शरह लिखी। ये किताबें जब ये किताबें छपी और छपकर अरबस्तान को पहुंची तो अरब के लोग हैरान रह गए और कहने लगे कि दीन हिंदुस्तान में है, हदीस हिंदुस्तान में। हदीस का इल्म इतना आम कर दिया मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी ने कि अरबों को ये एतराफ़ करना पड़ा कि जो है इल्म हदीस हिंदुस्तान में पाया जाता है। शेख बिन बाज ने जब देखा कि हदीस का इल्म हिंदुस्तान में है और हदीस का इल्म ये मदीना जो मरकज़ इस्लाम है, मरकज़ुल इल्म है, यहाँ कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहाँ से हदीस की तालीम हो, तो उन्होंने बादशाह के सामने जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा का प्लान पेश किया। बादशाह ने उनके प्लान को मंजूर किया और मदीना मुनव्वरा में जो है जामिया इस्लामिया कायम हुआ। आज वहाँ से हजारों उलमा फारिग होकर मदनी, हजारों उलमा फारिग होकर मदनी हो रहे हैं। जो भी वहाँ से मदीने से फारिग होकर आता है आलिम, वो अहले हदीस होता है। और ये अहले हदीस कहाँ से हुए इसको बताऊं मैं कि अरबस्तान में अहले हदीस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनकी एक किताब किताबुत तौहीद, इस किताब ने सारे अरब को मुआहिद बनाया। और इधर हिंदुस्तान में मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब के भतीजे शाह अब्दुल अजीज शाह इस्माइल शहीद, उन्होंने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान।
वो तक़वियतुल ईमान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुआहिद बनाई, वो किताब बहुत मुआहिद बनाई। तो ये हमारे उलमा की वो किस इखलास से उन्होंने वो किताब लिखा कि उन दो किताबों ने सारी दुनिया को मुआहिद बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बता रहा था कि हमारे जुनूबी हिंद में अहले हदीस कैसे पहुंचे, बड़े बड़े उलमा हैं और वहाँ से मौलाना सैयद अहमद शहीद वो उन्होंने जो है जिहाद किया है सिखों के खिलाफ, अंग्रेजी फौज के खिलाफ जिहाद किया। उन्होंने जो है मौलाना सैयद मोहम्मद अली रामपुरी को मद्रास भेजा कि जाओ वहाँ तक। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी दरख्वास्त करने लगे कि मैं मुजाहिद बनना चाहता हूँ और काफिरों से जिहाद करना चाहता हूँ, मुझे जिहाद में रहने की इजाजत दिए। तो कहा कि नहीं, हम जिहाद बिसैफ करेंगे, आप जिहाद बिलकलम करो, बिल लिसान करो, जाओ मद्रास जाके वहाँ दावत का काम करो। मौलाना सैयद मोहम्मद अली रामपुरी जब मद्रास पहुंचे, वहाँ उन्होंने दावत का काम शुरू किया। लोग जो है मुआहिद बन गए और उनमें से एक खान आलम खान बोल के बड़े रईस और जमींदार जागीरदार एक बहुत बड़े आदमी अहले हदीस बन गए और उनके तवस्सुत से बहुत सारे लोग अहले हदीस हो गए। तक़वियतुल ईमान किताब पर बहुत सारे लोग पढ़ने लगे और बहुत सारे लोग उसको फाड़ने लगे। मौलाना सैयद मोहम्मद अली रामपुरी जब किसी मस्जिद में नमाज के लिए जुमा का खुतबा दे रहे थे, चंद लोगों ने लाके तक़वियतुल ईमान को फाड़ कर दे दिया। और मौलाना जो खान आलम खान जो अहले हदीस हो गए, उनकी एक बेटी थी जो नवाब ऑफ आरकाट गौस खान के बेटे अजीम खान से ब्याही हुई थी। मौलाना सैयद इस्माइल साहब का बयान है कि हमारे जुनूबी हिंद में इस दावत कैसा पहुंचे और कैसे लोग जो है ईमानदार बने। तो उन्होंने कहा गौस खान नवाब ऑफ कर्नाटक के एक गवर्नर नवाब आलम खान अहले हदीस हो गए और उनकी बेटी भी अहले हदीस हो गई जो नवाब की बहू थी। तो नवाब ने और नवाब के बेटे ने बहू से कहा कि तुम जो है तो वो किताब और सुन्नत का तरीका छोड़ डालो, फातिहा, दरूद, चहलम और पंजे झंडे ये सब भी तुम करो और किताब और सुन्नत की दावत छोड़ो, वरना नहीं तो तुमको तलाक दे देंगे। और ये नवाब आलम खान से कहा कि तुम्हारी जागीर जब्त कर देंगे। तो नवाब आलम खान साहब का ईमान देखिए कि उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी को तलाक देना चाहते हो, मैं मुआहिद अहले हदीस होने की वजह से तलाक दे दो, तुम मेरी बेटी को तलाक दे दो, मैं उस बेटी को तुम्हारे इस्तबल, जानते इस्तबल की सूरत है जहाँ घोड़े बांधते, तुम्हारे इस्तबल के एक नौकर, घोड़े की मालिश करने वाले नौकर जो मुआहिद हो, नमाजी हो, उसको शादी करके दे दो। देखो कितना बड़ा ईमान है कि एक मुशरिक बिदअती जो हाकिम वक्त है और जो बहुत बड़ा मालदार है, उससे जो है अपनी बेटी निकाल कर कह देंगे मैं मुआहिद में शादी कर देंगे। ये नमूना जो है सलफ का नमूना है। मौलाना हमारे एक ताबई बोलो या ताबई सईद बिन मुसैब, उनका नाम आपने सुना होगा। उनकी एक खूबसूरत बेटी थी अजमलुन निसाई फिल अरब। वलीद बिन अब्दुल मलिक बादशाह की तरफ से उस लड़की का रिश्ता आया कि वलीद बिन अब्दुल मलिक को आप अपनी बेटी दे दीजिए। वह बादशाह वक्त, खलीफा वक्त, उमवी खलीफा। तो सईद बिन मुसैब ने इनकार कर दिया, नहीं मैं जो बादशाह को अपनी बेटी नहीं दूंगा। जो बादशाह ये खेल कूद में गुजारता है, नमाज नहीं पढ़ता है, जिसका अकीदा सही नहीं है, मैं उसको नहीं दूंगा। उन्होंने देने से इनकार किया। जब उनका एक शागिर्द जो मुआहिद था, नेक था, वो शागिर्द चंद दिन गायब हुआ, उसके बाद आया तो पूछा कि कहाँ गए थे? कहा कि मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था, उसकी तदफीन के सिलसिले में गया था। तो सईद बिन मुसैब ने कहा कि क्या तुम शादी करना चाहते हो? कहा कि हाँ करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, चलो बैठो, मेरी लड़की से निकाह पढ़ा दो, मेरी फला लड़की है, फला ये है, मुझे उसकी इजाजत है, तुम ले निकाह पढ़ा दो। रात हो गई तो बेटी को लाया और उस आदमी के घर के दरवाजे को खटखटाया इशा के बाद, और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बेटी को घर में छोड़ के घर को चले गए। ये शादी थी उस जमाने में, हमारे सलफ की शादी। उन्होंने किसको दिया? अपनी बेटी मुआहिद को दिया, अपने शागिर्द
اس کے اخلاق جانتے تھے. اس اخلاق کو جان کر جو انہوں نے اپنی بہترین بیٹی بادشاہ کے رشتے کو ٹھکرا کر انہوں نے ایک واحد کو شادی کر کے دی تھی. یہ ہمارا نمونہ سلف تھا. یہی چیزیں ہم سیکھنا ہے. ہماری یہی چیزیں ہمارے لیے تربیت کے باعث ہے. تو میں اب زیادہ بات نہیں کہوں گا. اب میں آ رہا ہوں میں اپنے مضمون کی طرف کہ ہم اور آپ لوگ جو ہے جامعہ کے اپنائے جامعہ سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 1970 میں وہاں استاد ہو کر آیا. 1972 یا 73 میں جناب مولانا سید عباس صاحب مولانا اپنے والد کے پاس پہنچے. جب مولانا سید اسماعیل صاحب فرشت تھے, بیمار تھے, ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ ابا جان وہ ڈیم جو بن رہا ہے وہاں کے جو بڑے بڑے بنگلے ہیں وہ ڈیم ختم ہونے کے بعد خالی ہو چکے ہیں. وہاں کا چیف انجینئر مجھے اجازت دیا کہ مدرسہ وہاں منتقل کرو. ڈیم DTP ڈیم جانتے ہیں آپ؟ ہاں, وہ ڈیم کو منتقل کرو. تو مولانا سید اسماعیل صاحب نے کہا کہ بیٹا ہم کو صرف مدرسہ نہیں چلانا ہے بلکہ جماعت کو لے کر چلنا ہے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. تم لے جا کر وہاں مدرسہ اگر چھوڑ دیں گے تو جماعت یہاں ڈوب جائے گی, ختم ہو جائے گی. میں مدرسے کو جماعت کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہوں. تم ہرگز مدرسہ وہاں نہیں لے جانا, ہرگز نہیں. مولانا سید اسماعیل صاحب کو ہمیشہ جماعت کی اور مدرسے کی دو چیز کی فکر تھی. ایک چیز کی فکر نہیں تھی, دو چیز کی فکر تھی. جہاں بھی اہل حدیث ہوتا مولانا سید اسماعیل صاحب اس کو خط لکھتے, اس کو دلاسا دلاتے, اس کو دین پر قائم رہنے کی جو درخواست کرتے. یہ مولانا اسی جماعت اسی دور میں 1973 میں ہاسپیٹ سے مولانا عبدالغفور صاحب آتے تھے. حنفی عالم سالانہ جلسوں میں, مدرسے کے سالانہ جلسوں میں آتے تھے. تو مولانا سید اسماعیل صاحب وہ عبدالغفور صاحب کو جو حنفی عالم تھے بلاتے, خوب کھلاتے پلاتے, تحفے دے کر بھیجتے, بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے. ہم نے پوچھا کہ مولانا وہ حنفی عالم ہے, آپ ان کی کیوں اتنی عزت کرتے ہیں؟ تو مولانا سید اسماعیل صاحب کا جواب سنیے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ اس شخص نے ہاسپیٹ میں جماعت اہل حدیث کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے. اہل حدیث طریقے پر نماز پڑھنے کی اجازت دے رکھی ہے, جبکہ کسی مسجد میں اہل حدیثوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ہاسپیٹ میں مولانا HK عبدالقادر صاحب جو ہریال کے رہنے والے تھے, وہاں جا کر ہاسپیٹ میں رہتے تھے. کوئی مسجد نہیں تھی اہل حدیث کی, غفور خان مسجد میں نماز پڑھتے تھے. یہ مولانا عبدالغفور صاحب ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے. تو مولانا سید اسماعیل صاحب صرف اہل حدیثوں کی خاطر ان کی عزت کرتے تھے. یہ مولانا سید اسماعیل صاحب کا جو ہے طریقہ تھا, دعوت کا طریقہ تھا کہ ہر ایک سے دوستی کرتے اور جماعت کی بڑی فکر کرتے. جماعت تو اس کے بعد آئیے مولانا سید عباس صاحب اچانک 1976 میں انتقال ہو گیا. خیر مولانا مولانا سید عباس صاحب کی تعزیت میں بہت سے علماء نے اور جماعت والوں نے مولانا صاحب دلاسا دی, سب دی. اور جب چند دن گزر گئے تو مولانا سید اسماعیل صاحب نے مجھے اور مولانا عبدالغنی صاحب کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا ہمارے فرزند چلے گئے, اب مدرسہ کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے, اب مدرسہ یتیم ہو جائے گا. میں موجود ہوں, مدرسہ قائم ہونا چاہیے. ہمارے بچے سید امیر حمزہ کو آپ آگے رکھو سیکریٹری کے, آپ لوگ مدرسہ چلاؤ. تو جو ہے ہم نے مولانا سید اسماعیل صاحب کی اس درخواست کو قبول کیا اور مدرسے میں جڑ گئے. اس وقت مدرسے میں 3 اساتذہ جو ہے موجود تھے. ایک مولانا عبدالغنی صاحب, مولانا عبدالرحیم صاحب اور میں, 3 آدمی جو ہے, اور دوسرے علماء آتے تھے جاتے تھے, لیکن مستقل طور پر یہ 3 علماء تھے. مولانا سید عباس صاحب 1945 میں ناظم بنے اور 1976 تک
नाजिम बनकर रहे। इस दौर में मौलाना सैयद अब्बास साहब के इस दौर में 3 उलमा जो है अच्छे काबिल निकले, उन्होंने जामिया का नाम ऊंचा किया। एक मौलाना यूसुफ जमील साहब 72 में फारिग हुए, और दूसरे मौलाना अब्दुल वहाब साहब जामी 74 में फारिग हो गए, और तीसरे कौन है आप जानते हैं कि मौलाना सैयद अब्बास साहब के दौर में जो मशहूर है वो नाचीज है, जो 1961 में फारिग हुआ। मौलाना सैयद अब्बास साहब की निज़ाम 1961 में मैं फारिग हुआ। इस दौर के उलमा में बस इन 3 उलमा ने जो है जामिया का नाम ऊंचा किया, और जमात की बड़ी खिदमत की, जमात की और मदरसे की, दोनों की खिदमत। मौलाना से यूसुफ जमील साहब की खिदमत जानते हैं, मौलाना अब्दुल वहाब साहब की खिदमत आपके सामने। और आइए मौलाना अब्दुल गनी साहब 74 से 88 तक नाजिम रहे। उनके दौर में 2 हीरे निकले जिन्होंने जामिया का नाम ऊंचा किया। वो कौन है? उनमें से एक शेख अनवर जामी है, जो 1974 में, 86 में, 85 में, 81 में फारिग हुए, और दूसरे मौलाना शोएब जूनागढ़ी, और तीसरे मौलाना जवाद अहमद साहब ये फारिग हुए। और 1988 में मौलाना अब्दुल गनी साहब रिटायर्ड हुए तो मौलवी अब्दुल रहीम साहब को नाजिम बनाया गया। तो उनके दौर में कुछ अच्छे उलमा फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो उलमा फारिग हुए उन फारिगीन में से एक मौलाना अब्दुल गफूर साहब जामी है, और दूसरे मौलाना हमारे सगरी मौलाना का नाम अब्दुल रहीम साहब सगरी है, और तीसरे मौलाना अब्दुल अजीज साहब जामी है, और चौथे एक मौलाना अब्दुल सलाम साहब विशाखापट्टनम में, जहाँ एक लड़कियों का बेहतरीन मदरसा मदरसे आयशा के नाम से खुद अकेले चला है, और वो फारिग हुए। और ऐसे बहुत और 2-4 आदमी जो उनके दौर में फारिग हुए जिन्होंने जामिया का नाम ऊंचा किया जामिया। उसके बाद 1998 में 98 में उनको रिटायर हो गए, मैं नाजिम बना। तो मेरे दौर में वो सिलसिला चला फरागत का, और बहुत सारे उलमा आए, और उसके बाद जामिया का इल्हाक इससे मदीना मुनव्वरा से हुआ, और बच्चे मदीना को जाने लगे। और उसके बाद चंद दिनों के लिए मौलाना अलाउद्दीन साहब वो नाजिम बने, और फिर उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम मदनी वो भी नाजिम बने। उन्होंने भी मदरसे को संभाला, और मदरसे से बहुत अच्छे फारिग हुए। और उसके बाद मदीने से इलाहा हुआ तो जामिया के बच्चे मदीना को पहुंचे। तो मदीने का जो पहली बैच निकली उसमें से एक मौलाना अब्दुल बारी मदनी। माशाअल्लाह।